Good morning, students. So, class 11, we are back again after vacations, and I hope you all have enjoyed your vacations very well. So, after the break of approximately 10 days, we are back to our online classes. We have already completed the main aspects of our constitution. When we talk about Indian constitution or Indian constitution system, already we have discussed that entire things are bifurcated into three major parts. वो कौन सी हैं? First, executive, legislature and judiciary. The entire constitution के ये तीन pillars हैं जिनके ऊपर जो पूरा इंडियन सिस्टम है वो खड़ा हुआ है. This already we have discussed. Today we will and in the previous videos and previous lectures we have already understood the executive branch of the government and legislative branch of the government. To brush you up, legislature कौन होता है? जो कानून को बनाते हैं. The people who are making laws, amending laws and constitution, they are legislative peoples. Executives कौन है? जो उनको execute कर रहे हैं, लागू कर रहे हैं. Those are executives. And the people who are watching keenly कि the things which are being executed, the laws which are being executed, जो सारी चीज़ें बनाई गई हैं, क्या नागरिक जो हैं हमारे, the countrymen, are they following those things or not? ये जो चीज़ है इस पर जो वॉच रखता है that is judiciary. So here we will be discussing the chapter judiciary. तो अब हम हमारा नया चैप्टर शुरू करेंगे जिसका नाम judiciary है. सबसे पहले इन क्या है, कैसे है, क्यों है, किस लिए है, क्या नॉर्म्स हैं, इन सब में जाने से पहले हम कुछ क्वेश्चंस है जिनको डिस्कस करेंगे. आप फर्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं, बेसिक कंसेप्ट है हमारा क्या, व्हाट इज जुडिशरी, क्या है जुडिशरी. द जुडिशरी व्हेन वी टॉक also known as judiciary system or the court system, इन नाम से भी इसको जाना जाता है. This is a system of court that interprets and applies the law in the name of state. State here means country, है ना. The judiciary also provides a mechanism for the resolution of the disputes. जो भी problems हैं, जो भी disputes हैं, है ना, किसी के बीच में भी हो सकती है ना, दो लोगों के बीच में हो सकती है, किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉय के साथ हो सकती है, किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन की होती है, दो ऑर्गेनाइजेशन की आपस में हो रही है. जिस भी तरह की डिस्प्यूट कंट्री में है किसी के भी बीच में, उसको खत्म कौन करवाता है, रिजॉल्व कौन करता है? हमारी जुडिशरी उसको रिजॉल्व कराती है. तो अब हम सेकेंड क्वेश्चन हमारा इसी से रिलेटेड है. क्या है? What is the role of judiciary? क्या रोल प्ले करता है जुडिशरी हमारा? देखो, जुडिशरी इज अ ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट विच एडमिनिस्टर जस्टिस अकॉर्डिंग टू द लॉज. और ये लॉज कहाँ लिखे गए हैं? These laws are being written in our constitution. हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में ये सारे लॉज लिखे गए हैं. The court apply the laws and settle disputes and punish lawbreakers. The citizens who are not serious about these laws, है ना, जो ओवरवीन कर रहे हैं, इनको ब्रेक कर रहे हैं लॉज को, उनको पनिशमेंट दिया जाता है हमारी जुडिशरी के द्वारा. और we can also say that our judicial system is a key aspect of our democratic way of life, है ना. It upholds peace, order and good government. अब good government कैसे order कर रहा है? देखो, let us say that I have the Constitution of India had passed a law. लेजिस्लेचर ने बनाया, एग्जीक्यूटिव ने एग्जीक्यूट कर दिया, तीसरा इंसान जो है वो उसको नहीं फॉलो कर रहा है. तो गवर्नमेंट क्या करेगी भाई? उसके अगेंस्ट केस कर देगी कोर्ट में. तो कौन एक्शन लेगा? द पीपल हु आर सिटिंग इन द जुडिशरी, हमारे जजेस हैं और
वो उसके बारे में डिसीजन लेंगे कि भाई दिस पर्टिकुलर पर्सन इज वायलेटिंग द लॉज मेड बाय इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वो वायलेट कर रहा है उस लॉ को। जब वो इस चीज को प्रूव कर देंगे तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली जो हमारा सिस्टम है वो सही चलेगा। थर्ड, इसी से रिलेटेड आगे क्या आता है कि व्हाट इज इंडियन जुडिशरी। इंडियन जुडिशरी क्या है भैया, जैसे सबकी जुडिशरी है ऐसे हमारी भी जुडिशरी है। जुडिशरी सिस्टम ऑफ इंडिया व्हेन वी टॉक, और जो जुडिशियल सिस्टम ऑफ द कोर्ट सिस्टम is also called the judiciary system. The court has the power to make decisions and also enforce laws, solve disputes. Judiciary system is consist of judges and other magistrates, ना उन सब से मिलके बनता है, and they form the bench of the core of the judiciary system. जितने भी मजिस्ट्रेट्स वर्किंग हैं, जितने भी जजेस हैं, ये लोग हैं। हाई कोर्ट है, पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आता है, फिर हाई कोर्ट आता है, फिर सुप्रीम कोर्ट आता है। ये सारा सिस्टम जो है ये मिलाकर हमारा इंडियन जुडिशरी सिस्टम बनता है। हाईएस्ट अथॉरिटी हमारे यहाँ का क्या है, वो है सुप्रीम कोर्ट। अब कितने टाइप का होता है हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ जुडिशियल सिस्टम इज देयर। देखो, द फेडरल सिस्टम, द फेडरल कोर्ट सिस्टम हम बोले रेफर टू टू टाइप्स ऑफ कोर्ट्स। बिगिनिंग में फेडरल वाला दो टाइप के कोर्ट्स को रेफर करता है। पहला क्या है, द फर्स्ट टाइप ऑफ कोर्ट इज रेफर टूवर्ड्स द आर्टिकल 3 कोर्ट। दीज कोर्ट्स क्या इनमें क्या क्या आता है, फर्स्ट फ्रेमवर्क पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स आते हैं, सर्किट कोर्ट ऑफ अपील्स आते हैं और सुप्रीम कोर्ट आता है। दे ऑल्सो इन्वॉल्व टू अदर स्पेशल कोर्ट्स लाइक द कोर्ट ऑफ क्लेम एंड इंटरनेशनल कोर्ट्स। ठीक है, फर्स्ट टाइप में हमारे ये वाले आते हैं, सेकेंड टाइप वाला बहुत डिटेल्ड है, वो हम पढ़ेंगे आगे। तो हम देखते हैं जो जुडिशरी हमें नजर आ रही है, हमें यही नजर आता है ना, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट नजर आता है, हाई कोर्ट नजर आते हैं, सुप्रीम कोर्ट नजर आता है। ये आर्टिकल 3 है, कोर्ट का आर्टिकल 3 है जो कि फर्स्ट फेज में आता है। अब हमारी जो जुडिशरी है जो किस किस की बनी हुई होती है ना, व्हाट इज जुडिशरी मेड अप ऑफ। जुडिशरी थर्ड ब्रांच है गवर्नमेंट की, पहला है लेजिस्लेचर, उसके बाद एग्जीक्यूटिव है, उसके बाद हमारा जुडिशरी पावर में आता है। थर्ड ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट इज द जुडिशियल ब्रांच। द जुडिशरी सिस्टम इज मेड अप ऑफ वही सुप्रीम कोर्ट, हमारा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट है ना, लोकल लेवल पर हमारा क्या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ही होता है, उसके बाद हाई कोर्ट होता है जो कि स्टेट में एक होता है, और फिर सुप्रीम कोर्ट जो कि इंडिया की हाईएस्ट लॉ मेकिंग लॉ एग्जीक्यूटिंग बॉडी को माना जाता है। द स्टेट जजेस आर इलेक्टेड बाय द सिटीजन्स रादर देन बीइंग अपॉइंटेड। कैसे, हमारे यहाँ नहीं होता है, हमारी इंडिया में नहीं होता। हमारे यहाँ प्रॉपर यूपीएससी एग्जाम कंडक्ट करवाता है और गवर्नमेंट लॉयर्स जिनको अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो जाता है ना, उनमें से कुछ जो हैं वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जजेस इस तरह से प्रमोट होते हैं। क्या कैसे कैसे होते हैं वो हम करेंगे। अब हम देखते हैं जुडिशरी जो है लॉ एंड ऑर्डर ठीक से मेंटेन कराना ये सब है, लेकिन हमारी लाइफ को हाउ डज द जुडिशरी ब्रांच इफेक्ट माई लाइफ, मेरी जिंदगी को कैसे जो है वो इफेक्ट करेगा। देखो, जुडिशरी सिस्टम जो है, जो जुडिशियल ब्रांच है हमारी, इट इम्पैक्ट्स अस वेरी मच बिकॉज इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द लॉज दैट माइट वायलेट द कॉन्स्टिट्यूशन। व्हेन अ कोर्ट इज आस्क्ड टू व्यू अ लॉ और टू रिव्यू अ लॉ, भाई ये ठीक नहीं लग रहा है, इस लॉ को रिव्यू करो, तो क्या है, इट मस्ट डिटरमाइन इफ द लॉ इज कॉन्स्टिट्यूशनल, मीनिंग दैट इट डजंट वायलेट द प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। द जुडिशियल ब्रांच ऑल्सो हियर्स सर्टेन केसेस। मेरे साथ कुछ भी गलत हो रहा है तो हम मैं कहाँ जाऊँगा भाई, कोई भी चीज़ मेरे साथ अगर गलत हो रही है तो मैं सबसे पहले हम कहाँ जाएंगे, हम जो कोर्ट में जाएंगे, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाएंगे। सो हमारी नॉर्मल डे टू डे लाइफ को तो इम्पैक्ट करेगा ही करेगा कोर्ट सिस्टम। अगर ठीक तरह से डिसीजंस
जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली जो द पीपल हु आर कंसिडर्ड एंटी सोशल एलिमेंट है ना, उन पर लगाम कसेगा। तो क्या होगा, सोसाइटी अपने आप क्या है, एक स्मूथ फॉर्म में आगे चलती चली जाएगी, है ना, अपने आप चलती चली जाएगी। क्योंकि इस बात का डर होगा लोगों को कि अगर हमने कुछ भी एंटी गवर्नमेंटल किया, हमने कुछ भी एंटी कंट्री किया, एंटी पीपल किया, एंटी सोसाइटी किया, मतलब कुल मिला के हमने कुछ भी गलत किया, तो हमारे सर पे कोर्ट बैठा है हमको पनिश करने के लिए, है ना। ऐसा नहीं है कि हम ये सब करके छूट जाएंगे, कुछ नहीं होगा हमारा ना। कोर्ट है, वी विल बी थ्रोड बिहाइंड द बार्स, केस चलेगा और भी बहुत कुछ हो सकता है। तो वो जो डर है लोगों में, वो आधा काम तो वो डर ही कर देता है ना। तो इसीलिए हम देखते हैं कि टू रन अ स्मूथ कंट्री जुडिशरी का स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। इसीलिए सबसे पहले हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स के दिमाग में ये क्वेश्चन आया दैट व्हाई जुडिशरी इज इम्पोर्टेंट, कि भाई जो तो पहला टॉपिक जो है, जब आप अपनी एनसीईआरटी की बुक खोलोगे तो आपको पहला जो टॉपिक है वो यही मिलेगा। कौन सा मिलेगा? चैप्टर 6 में पहला टॉपिक यही मिलेगा, व्हाई डू वी नीड एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी, हमको एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी की आवश्यकता क्यों पड़ती है या क्यों होती है। देखो, वी ह्यूमन बीइंग क्या है, ह्यूमन बीइंग इज अ सोशल एनिमल, वी नीड सोसाइटी टू लिव इन, हम अकेले तो नहीं रह सकते हैं। क्लास 9-10 में सारी बातें आप पढ़ के आए हो। वी आर बाउंड टू अराइज बिटवीन इंडिविजुअल्स, बिटवीन ग्रुप्स, है ना, एंड बिटवीन इंडिविजुअल ग्रुप्स एंड गवर्नमेंट, हम लोग उनसे मिलते हैं तो गवर्नमेंट बनती है। तो इसीलिए ये जितने भी डिस्प्यूट्स होते हैं उनको कौन सॉल्व करे? कोई ऐसा आदमी सॉल्व करे जो इनमें से किसी के भी प्रभाव में नहीं आए। बट डिस्प्यूट किसके बीच में होता है? हाँ, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल हो सकते हैं, इंडिविजुअल टू गवर्नमेंट हो सकते हैं, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट हो सकते हैं, एक स्टेट से दूसरे स्टेट के बीच में भी हो सकते हैं। अब इन डिस्प्यूट्स को सॉल्व करने के लिए हम कहाँ जाएंगे? We will go to court only. So this is very, and the person who is sitting there on the chair of judge, वो bias नहीं होना चाहिए, है ना। वो किसी दोनों में से, दोनों केसेस में से किसी के भी प्रभाव में आकर वो अपना नहीं दे। रिच है, ये पुअर है, भाई एक रिच और पुअर के बीच में कुछ कंसाइनमेंट हो गया, कुछ प्रॉब्लम हो गई, तो जो जज है वो उसको इस चीज से इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए कि भैया ये तो गरीब है और ये अमीर है। ऑल आर सब्जेक्टेड टू द सेम लॉ, बीइंग द सिटीजन ऑफ द कंट्री, ऑल आर सब्जेक्टेड टू द सेम लॉ, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने बिल्कुल क्लियरली मेंशन किया है दैट ऑल द सिटीजन्स will be considered equal in the eyes of Constitution. No discrimination will be made among the citizens of the country on the basis of caste, creed, religion, gender, prosperity, their financial condition, their position. इन सब चीजों से बिल्कुल भी प्रभावित नहीं होना है किसको? जज को। इसीलिए ये बहुत जरूरी है कि जज की चेयर पे जो बैठा हो वो सही को सही और गलत को गलत कहने की हिम्मत रखता हो, है ना। ही मस्ट बी ट्रांसपेरेंट, देन ओनली वी कैन से दैट वी आर लिविंग इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री वेयर ऑल द सिटीजंस आर बीइंग कंसिडर्ड इक्वल, देन ओनली वी कैन से दैट। सो टू फुलफिल द फर्स्ट प्रॉमिस which was being made to the citizens of India that they will be living in a democratic country, तो उसको फुलफिल करने के लिए पहला पॉइंट ही ये है कि किसी भी सिटीजन में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। इसीलिए वी नीड एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी, ताकि से जिसने जो गलती की है उसको उस गलती की सजा भी मिले। तो सारे, इसीलिए तभी सारे जो सिटीजन्स हैं वो इक्वल कंसिडर्ड किए जाएंगे। तो इसीलिए इंडिपेंडेंट जुडिशरी जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है।
सेकेंड टॉपिक जो है वो तुम्हें मिलेगा इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। देखो सिंपली अगर हम बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में बात करें तो जुडिशरी की इंडिपेंडेंस का क्या मतलब है हमारे लिए। देखो लाइक अदर ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, एग्जीक्यूटिव की बात कर ले, हम लेजिस्लेचर की बात कर ले, जुडिशरी जो है उसको कहीं भी बायस नहीं होना चाहिए ना, उसको बिल्कुल क्लियरली जस्टिस करना चाहिए। दूसरा, अदर ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर है, जो इंडिपेंडेंट बॉडीज है, इलेक्शन कमीशन एंड ऑल है, ये किसी भी तरह से अपना प्रभाव डालने की कोशिश नहीं करेंगे जुडिशरी पर। जो जुडिशरी कैसे एक्शन लेगा एज पर द लॉज रिटन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, उनको उसके अकॉर्डिंग ही डिसीजन लेना पड़ेगा। अब दूसरा, अगर इंडिपेंडेंट जुडिशरी में क्या है, जजेस जो हैं दे मस्ट एबल टू परफॉर्म देयर फंक्शन विदाउट फियर एंड फेवर। फियर एंड फेवर का यहाँ क्या मतलब है कि एक एमएलए के अगेंस्ट में केस आ जाता है ना, एमएलए ने कुछ कर दिया, उसके बेटे ने कुछ कर दिया, उसके फैमिली मेंबर ने कुछ कर दिया, कोर्ट में केस आ गया, तो हमारे जजेस के पास इतने राइट्स होने चाहिए, इतना सब होना चाहिए कि किसी भी तरह से वो एमएलए उन्हें प्रभावित ना कर पाए। बिकॉज आई एम एन एमएलए सो यू हैव टू लिसन टू मी, और ये जो दूसरा आदमी बोल रहा है इसकी बात सुनने की जरूरत नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो प्रेशर में मतलब जजेस काम नहीं कर पाएंगे। कोई डर नहीं होना चाहिए उन्हें कि बिकॉज ही इज द एमएलए, है ना, ऑफ दैट प्लेस वेयर आई एम वर्किंग एज अ जज। तो अगर मैंने इसके अगेंस्ट में कोई डिसीजन दिया तो कल को मेरी नौकरी जा सकती है या कुछ और हो सकता है, इस तरह का कोई डर नहीं होना चाहिए। और एक्चुअली हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बिल्डअप है ऐसे कि प्रैक्टिकली उनको इस बात का कोई डर ही नहीं। चेक एंड बैलेंस जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे स्ट्रॉन्ग पार्ट है, उसने जितने भी ऑफिसर्स हैं इनको इतनी पावर दी हुई है। फॉर एन एग्जाम्पल हम देखते हैं कि एक एसपी के पास, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस जो है, उसके पास इतनी पावर होती है कि इफ ही फाइंड आउट दैट द एमएलए ऑफ दैट पर्टिकुलर रीजन इज नॉट डूइंग हिज ड्यूटी ऑनेस्टली और ही हैज डन समथिंग, वो उसको कॉलर से घसीटते हुए जेल में डाल सकता है। लेकिन हम देखते हैं प्रैक्टिकली तो यार ऐसा नहीं होता है, नहीं होता है ना। अब इसके लिए कौन जिम्मेदार है? हम हिंदुस्तानियों का सीधा साधा रटा रटाया जवाब होता है, यार ये गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही है, यार गवर्नमेंट को ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, फलाना करना चाहिए, ढिमका करना चाहिए। क्या बीइंग द सिटीजन ऑफ द कंट्री हमें कुछ नहीं करना चाहिए? क्या हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी कंट्री के लिए कुछ नहीं होनी चाहिए? करप्शन क्यों बढ़ता है? क्योंकि हम करप्शन बढ़ाते हैं, वी द सिटीजन ऑफ द कंट्री। भैया दूसरे वाला पैसा कब लेगा? जब मैं पैसा दूंगी। सीट पे बैठा हुआ आदमी कब पैसा खाएगा? जब मैं बेईमान हूं, when I am correct, if I am honest towards my country, कोई पैसा नहीं करप्शन का खा सकता। मैं सोचूंगी यार घर का नक्शा पास कराना है, what should I do? I'll bribe him 10,000 rupees. ना, who will come daily here? Na, to the municipality office, I'll give him 10,000 bucks and my work will be done in a day. And I am capable of spending 10,000 bucks. So I'll give him. And my work is done. I'm very happy. I'll happily go home. But before doing this, have I given a thought that there are so many citizens in my country who are earning only 10,000 bucks? And that person is sitting there to do this work only. वो आज नहीं करेगा, वो कल करेगा, कल नहीं करेगा, परसों करेगा, परसों नहीं करेगा, दिन बाद करेगा। If I am right on my part, he has to do my work. अगर मेरे काम में कोई दिक्कत नहीं है, मैं लॉस के अगेंस्ट में कुछ नहीं कर रही हूँ, तो उसको मेरा काम आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, नहीं तो एक हफ्ते बाद, 10 दिन बाद, 20 दिन बाद करना पड़ेगा। Till when he can hold that fight. तो
सिटीजन्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उतनी ही होती है जितनी हमारे पोजीशंस पे बैठे हुए लोगों की होती है। तो हर चीज़ के लिए गवर्नमेंट को ब्लेम कर देना या किसी दूसरे इंसान को ब्लेम कर देना इज नॉट करेक्ट। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सारे प्रोविजंस हैं, ऑल प्रोविजंस आर देयर टू सेफगार्ड द सिटीजन, टू सेफगार्ड द कंट्री, टू रन अ स्मूथ गवर्नमेंट, टू रन अ स्मूथ कंट्री। लेकिन मेरे बच्चों, बेईमान हम हैं। सो एक चीज हमेशा याद रखना, हमेशा, देश से बड़ा कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। आज अपने इंडिविजुअल कामों को जल्दी करने के लिए मैं ब्रेक दे रही हूँ, कल को उसको आदत पड़ जाएगी। तो आज कम की पड़ी है, कल ज़्यादा की पड़ेगी। आज से मुझे छोटा सा काम है तो आई विल ब्राइब हिम 10,000 रुपीज़। हो सकता है कि मेरी किसी बड़े काम के लिए मुझे उससे ज़्यादा पैसे देने पड़े। आदत किसने डाली? आदत मैंने डाली। तो वी आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल, हम भी उतने ही रिस्पॉन्सिबल हैं। हम कहते हैं यार इतने रेप होते हैं यहाँ पे, कोर्ट क्या करती है? कुछ नहीं करते, है ना। हम लोग बहुत नॉर्मली इस चीज़ को बोलते हैं ना। आज किसी नुक्कड़ पे जो राय पे डिस्कशन हो जाएगा, भाई साहब सबसे ज़्यादा करप्शन जुडिशरी में, है ना। ये बहुत नॉर्मल बातें हैं जो तुम्हें कहीं ना कहीं सुनने को मिलेंगी। सबसे ज़्यादा करप्शन जुडिशरी में हो रहा है। भाई कौन कर रहा है? कौन कर रहा है? अरे हम ही तो कर रहे हैं, हम ही तो पैसा दे रहे हैं अपनी गलत बातों को छुपाने के लिए। गवाह बिक रहे हैं, वो कौन है? हम में से ही तो कोई एक है, मैं नहीं हूं, कोई और है मेरा भाई। हम कुछ पैसों के लिए गलत इंसान का साथ दे रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? हम हमारे देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं। तो देश से बड़ा कुछ नहीं होता है। पहला रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है तुम्हारी? यू मस्ट बी ऑनेस्ट विद योर कंट्री। बाकी सब देखा जाएगा। क्योंकि जिस दिन हम अपनी कंट्री के साथ ऑनेस्ट हो गए ना, उस दिन हिंदुस्तान को कोई पछाड़ नहीं सकता। तो इसीलिए अच्छा, और ये सब प्रोविजंस है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। अभी हम उसी की बात कर रहे थे ना, जुडिशरी की। फियरलेस वर्क करे और फ्री वर्क करे। सही को सही और गलत को गलत बोलने का वादा इंसान को रखना चाहिए, वो चाहे घर में हो या बाहर हो। जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है। इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हमारी जुडिशरी को ये सारे राइट्स दिए हैं कि इंडिपेंडेंटली वो लोग काम कर पाए। क्योंकि जब जुडिशरी इंडिपेंडेंटली काम करेगा तभी क्या होगा? सही डिसीजन तभी आ पाएगा। पीपल विल फील देमसेल्फ सिक्योर बिकॉज दे नो दैट समवन इज देयर टू सेफगार्ड आवर राइट्स। कोई है जो बिल्कुल सही डिसीजन लेके गलत को गलत और सही को सही बोल देगा। So these all things are important for when we talk about the independence of judiciary। जब हम जुडिशरी के इंडिपेंडेंट की बात कर रहे हैं तो ये सारी चीज़ें जो है वो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो जाती हैं। अब नेक्स्टली व्हाट वी सी, ये तो हमने छोटी मोटी बात कर ली, क्या कैसे जुडिशरी को इंडिपेंडेंट रखा जाए। So the next topic which we will discuss now is कि how can independence of judiciary can be protected। कैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने कैसे प्रोटेक्ट करके रखा है जजेस की सिक्योरिटी को या पावर को, जिससे कि वो लोग इंडिपेंडेंट डिसीजंस जो हैं वो ले पाए। देखो, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज एश्योर्ड दिस थिंग वेरी वेल। कैसे? उन्होंने ये चीज़ बिल्कुल क्लियर रखी है कि लेजिस्लेटिव पीपल जो हैं वो किसी भी तरह से जजेस के अपॉइंटमेंट में इन्वॉल्वमेंट उनका नहीं होता है। दे डोंट प्ले एनी रोल इन द अपॉइंटमेंट ऑफ द जजेस एज वेल। अब इससे क्या होता है? अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस क्या है? जो एक्सपीरियंस लॉयर्स हैं, दे आर वेल वर्स्ड इन इंडियन लॉ,
पॉलिटिकल ओपिनियन जो है दे परफॉर्म, उनकी लॉयल्टी क्या है, ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें पहले देखी जाती हैं बिफोर अपॉइंटमेंट द जजेस। दूसरा क्या करा है कि कॉन्स्टिट्यूशन में जजेस के टेन्योर को फिक्स कर दिया। गवर्नमेंट पोस्ट है, गवर्नमेंट जॉब की पोस्ट है, दे हैव अ स्पेसिफिक टाइमिंग, वो उतने टाइम के लिए काम करेंगे। अगर वो किसी पावरफुल आदमी के अगेंस्ट में डिसीजन दे भी देते हैं तो उनको हटाने वाला कोई नहीं, उन्हें पता है हमारा कोई कुछ नहीं कर सकता। हम अगर सच के साथ हैं तो कोई हमें हटा नहीं सकता, कोई हमें रिमूव नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता। ये किसके? जजेस की सिक्योरिटी के लिए। अब जजेस की जॉब अगर सिक्योर होगी, उनको पता होगा वी आर सेफ एंड सिक्योर, तभी तो वो इंडिपेंडेंट डिसीजन सही तरीके से ले पाएंगे। तो ये सारे प्रोविजंस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हैं, क्योंकि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स हैं दे बिलीव दैट द प्रोसेस ऑफ द रिमूवल ऑफ द जजेस दैट मस्ट बी वेरी स्ट्रिक्ट, जिससे कि अगर इवन बहुमत में भी कोई सरकार है और वो उस जज को हटाना भी चाहेगी तो उसके लिए भी बहुत टिपिकल प्रोसीजर से उनको गुजरना पड़ेगा। तो इतने टाइम में सच जो है वो सामने आ ही जाता है। अब जुडिशरी क्या है? इज नॉट अ फाइनेंशियली डिपेंडेंट ऑन एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर। उनकी सैलरी, उनका अदर अलायंसेस जो होते हैं उनके, उसके लिए दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन एग्जीक्यूटिव्स एंड लेजिस्लेटिव पीपल। उससे वो सारा प्रोविजन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सेट है। दिस इज अ सैलरी पेड जॉब और अकॉर्डिंगली उनकी सैलरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से फिक्स होती है, जो कि उनको बिक जाती है। बहुत सारे अनफेयर क्रिटिसिज्म भी हम देखते हैं जजेस के लिए होते हैं, है ना। तो टू रिमूव अ जज, इम्पीचमेंट प्रोसेस जो है वो बहुत टिपिकल है रिमूवल के लिए जज के। और आज तक इंडिया में ऐसा कभी नहीं हुआ है किसी जज को इम्पीचमेंट के थ्रू हटाने का प्रोसेस जो है वो किया गया, है ना। ऐसा हमारे यहाँ कभी नहीं हुआ है। सो ये कुछ प्रोविजंस जो हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन में इसलिए रखे गए हैं ताकि से किसी भी हाल में हमारे जजेस कमज़ोर ना पड़े, किसी तरह का डर उनको ना हो, और जो है जो डिसीजन वो दें वो बिल्कुल फेयर डिसीजन जो है वो निकल के सामने हमारे सामने आए। सो नाउ लेट अस सी कि हमारे जजेस का अपॉइंटमेंट कैसे होता है। देखो, करंटली इफ वी टॉक, the Indian judicial system is totally managed and administrated by the officers of judicial services, unlikely from the history where the ICS officers जो थे they were also the part of judicial system। कब की? हम colonial टाइम की बात कर रहे हैं। अब ऐसा कुछ नहीं है, प्रॉपर जुडिशरी जो है वो मैनेज की जाती है। नाउ लेकिन एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, judicial services in India is among the arm of all India services. But due to various obstructions, the judges appointed through respective state public commission services or by the High Court up to the post of district judges. Whereas the judges of the High Court and Supreme Court, they are appointed by the President of India on the recommendation of Council of Ministers. अब जो हमारा जो इंडिया का जुडिशियल सिस्टम है, दे आर क्लासिफाइड इनटू 3 हायरार्कीज विद सब पार्ट्स। हायरार्की लेवल जो है हम उसको इन सब चीज़ों में हायरार्की लेवल को फेस करते हैं, मानते हैं। जैसे जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है, ऑल्सो नोन एज द एपेक्स कोर्ट भी बोलते हैं इसको, इज द टॉप एंड द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज द टॉप अथॉरिटी एंड लास्ट अपील्ड कोर्ट। सबसे लास्ट अपील वही की जाती है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में। हम ऊपर से नीचे चलेंगे, ठीक है। अब कुछ हैं, 2 चीज़ें और हैं जिसके लिए प्रेसिडेंट साहब को अपील की जा सकती है, फांसी की सज़ा ख़त्म करवाने के लिए और उम्र कैद को कम करवाने के लिए। बाकी हाई अपील कोर्ट है सुप्रीम कोर्ट हमारा। अब इसके बाद सुप्रीम कोर्ट, इट इज़ फॉलोड बाय हाई कोर्ट एज टॉप जुडिशियल अथॉरिटीज इन states, and that is being controlled and managed by chief justice of states with similar powers of
Supreme Court at the same extent, and the last is District Court, also known as Subordinate Court. This is controlled and managed by District and Session Judges under the सुपरविजन एंड डायरेक्शन ऑफ हाई कोर्ट। तो हम 3 पार्ट्स में देखते हैं। सबसे पहले क्या है, हमारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होते हैं, इनको सबऑर्डिनेट कोर्ट के नाम से भी हम लोग जानते हैं, और हाई कोर्ट के अंडर डायरेक्शन में ये लोग काम करते हैं। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कोई कोर्ट गया, हम सेटिस्फाइड नहीं हैं डिसीजन से, हम अपील कर सकते हैं हाई कोर्ट में, जो कि स्टेट में एक होता है, जो किसके अंडर में काम करता है, स्टेट कमीशन जो है उसके अंडर में, और सुप्रीम कोर्ट के इफेक्ट से, और लास्टली सबसे ऊपर जो है वो हमारा सुप्रीम कोर्ट है। अब ये जो सबऑर्डिनेट कोर्ट है हमारा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, ये फर्दर क्लासिफाइड इनटू 2 में हो जाता है। किसमें, सिविल कोर्ट्स इन विच जो सब जजेस हैं वो हेड हैं, और जो कि मुंसिफ एट लोअर वहाँ पर फॉलो करते हैं। अनदर क्रिमिनल कोर्ट है, वो फंक्शन करता है चीफ जुडिशियल मेट्रोपोलियन मजिस्ट्रेट, वो लोग असिस्ट करते हैं इसको। ACGM होता है, ACMM होता है, JM होता है, MM होता है एट लोअर लेवल, है ना। तो मतलब डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी 2 पार्ट्स में बाइफर्केट हो गया, क्रिमिनल और सिविल लॉ, और वहाँ पर जो भी ऑथराइज पर्सन वहाँ पर सिटिंग, वो लोग उस कोर्ट को करते हैं। अनदर को एक और कोर्ट होता है भाई, सिविल और उसका तो हो गया, लेकिन इसके बाद और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि बच जाती हैं। वो है अदर कोर्ट है, दैट इज एग्जीक्यूटिव एंड रेवेन्यू कोर्ट, विच आर मैनेज्ड एंड कंट्रोल बाय स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट किसके थ्रू, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के थ्रू उनको हैंडल करती है। अब ऑल दो व्हाट वी सी कि जो डिस्ट्रिक्ट जो एग्जीक्यूटिव कोर्ट्स होते हैं, दे आर नॉट अ पार्ट ऑफ द जुडिशरी, but there are various provisions and judgmental empowerment of high court and session judges to inspect or direct the working of executive courts। क्योंकि अगर सब यही करते चले जाएंगे तो केसेस इतने ज़्यादा हो जाएंगे। जैसे हमारे इंडिया में हम देखते हैं इतने सारे केसेस हैं जो पाइल्ड अप हैं, जो खत्म होने का नाम नहीं लेते। अब इन सब का मैनेजमेंट कौन करता है, द मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस एट द यूनियन लेवल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेजिंग इशू before parliament and to deal with the concern issue for proper functioning of the judiciary system। नीचे से ऊपर सारे में ये जो मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस है ये जिम्मेदार है। अब द मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस हैव कंप्लीटेड जुरिडिक्शन टू डील विद द इशू ऑफ एनी कोर्ट इन इंडिया। कहाँ से, फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट टू सबऑर्डिनेट कोर्ट टू एग्जीक्यूटिव कोर्ट, सबको इनके अंडर में ही जो है वो काम करना पड़ता है। एट स्टेट लेवल हम क्या देखते हैं, द लॉ डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट, इट डील्स विद एंड एड्रेसेस द इश्यूज ऑफ हाई कोर्ट एंड द सबऑर्डिनेट कोर्ट्स रिस्पेक्टिव टू देयर स्टेट अथॉरिटीज और अगेंस्ट द स्टेट लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट, एंड इफ रिक्वायर द मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस एज वेल। अगर स्टेट लेवल पर वही इस चीज़ को ये खत्म कर देते हैं तो आगे जो है वो ज़्यादा प्रॉब्लमेटिकली ज़रूरत नहीं पड़ती है, उन ज़्यादा इंटरफेरेंस और इसकी जो ज़रूरत है वो नहीं पड़ती है। अब हम अगर हायरार्की वाइज देखते हैं तो सबसे पहले जुडिशरी में आ गए हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, फिर है जस्टिस ऑफ जो है जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट आ जाते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट है, जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट है, फिर प्रिंसिपल आ गए हमारे कौन कौन से, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सेशन जजेस, है ना, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। फिर प्रिंसिपल जजेस आ जाते हैं इसके फैमिली कोर्ट एंड ऑल, ये उसके बाद आ जाता है एडिशनल डिस्ट्रिक्ट है सेशन जजेस हमारे आ जाते हैं। उसके बाद फास्ट ट्रैक कोर्ट है, NDA है, NDPS कोर्ट है, बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें आगे चल के जो आ जाती हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, जब हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की बात करते हैं तो हम क्या पाते हैं भाई, हाईएस्ट अथॉरिटी है तो सबसे इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। तो हम क्या देखते हैं, एक चार्ट के थ्रू मैं तुमको इस चीज़ को समझाती हूँ। सबसे ऊपर है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ये है हमारा सुप्रीम कोर्ट ऑफ
इंडिया हाईएस्ट अपील अथॉरिटी है, इसके आगे कहीं कोई सुनवाई भैया नहीं होगी। क्या क्या करता है ये? इट्स डिसीजंस आर बाइंडिंग टू ऑल ओवर द कोर्ट। जो डिसीजन ले लिया सुप्रीम कोर्ट ने, हर कोर्ट को मानना ही मानना है। इट कैन ट्रांसफर जजेस फ्रॉम अ हाई कोर्ट टू अनदर। इट कैन मूव केसेस फ्रॉम एनी कोर्ट टू इटसेल्फ। इसके पास इतनी पावर होती है, इसको लगता है कोई भी जाकर अगर कंपेल करता है कि किसी भी और के कोर्ट से ये उठाकर अपने पास लेके आ सकता है। इट कैन ट्रांसफर केस फ्रॉम वन हाई कोर्ट टू अनदर। ये सारी पावर्स इसके पास होती हैं। सुप्रीम कोर्ट से नीचे क्या आता है? हमारा हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट से नीचे आ गया हमारा हाई कोर्ट। हाई कोर्ट क्या करता है? इट कैन हियर अपील्स फ्रॉम लोअर कोर्ट। जितने भी लोअर कोर्ट है उनसे जो अपील है सुनता है। इट कैन इशू रिट्स फॉर रिस्टोरिंग फंडामेंटल राइट्स, है ना। फंडामेंटल राइट्स नहीं अगर मिल रहे हैं हमको, हमारे कुछ और प्रोविजन है, तो ये रिट्स क्या है वो पढ़ेंगे अभी हम आगे। उनके थ्रू उनको हमें वापस रिजॉल्व करवा सकता है। इट कैन डील विद केसेस विद इन द जुरिडिक्शन ऑफ द स्टेट। ये कहाँ की? ये ऑल ओवर इंडिया का जुरिडिक्शन है। हाई कोर्ट जो है, जिस पर्टिकुलर स्टेट का हाई कोर्ट है उसी स्टेट के जुरिडिक्शन तक इसकी डिपेंडेंसी है। इसके नीचे आते हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स आते हैं, जो कि पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट तक के उसमें रहते हैं। क्या करते हैं? दे डील विद केसेस अराइजिंग इन दैट पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट जहां पर ये कोर्ट है। दे कंसिडर अपील्स ऑन डिसीजंस गिवन बाय द लोअर कोर्ट। दे डिसाइड्स केस इन्वॉल्विंग इन सीरियल क्रिमिनल ऑफेंस, है ना। ये इनका मेन काम होता है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से नीचे हमारे क्या होते हैं? सबऑर्डिनेट कोर्ट्स होते हैं। सबऑर्डिनेट और लोअर कोर्ट्स होते हैं, है ना। तो ये 4 हायरार्की लेवल हैं जिनको हम हमारे जुडिशरी में फॉलो करते हैं। सबऑर्डिनेट कोर्ट्स क्या करते हैं? दे कंसिडर केस ऑफ सिविल एंड क्रिमिनल नेचर। जो सेटिस्फाइड नहीं है वो ऊपर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाएगा, फिर हाई कोर्ट जाएगा और फिर सुप्रीम कोर्ट जाएगा। तो हम सुप्रीम कोर्ट की अगर बात करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट जो है इट्स द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द कंट्री और आवर नेशन। इट इज विच इज एस्टेब्लिश्ड बाय कॉन्स्टिट्यूशन एंड अकॉर्डिंग टू इट हम क्या देखते हैं? द सुप्रीम कोर्ट इज अ फेडरल कोर्ट, गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील। और आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 124 से 147 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दे ले डाउन द कंपोजिशन ऑफ jurisdiction of the court. Now primarily it is an appeal court which takes up appeals against the judgment of the high courts of the state and territories. आजकल तो और फालतू के काम भी बहुत करने लगा है सुप्रीम कोर्ट। हमारा बेसिकली गठन इसके लिए ही हुआ था। आगे हम देखते हैं that it also takes writ petition in cases of serious human right violations or any petition filed under Article 32. कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 32 जो क्या है? राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज हमको देता है ना। उस वहाँ जहाँ नहीं मिल रहा है कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, जिनको नहीं मिल रहा है, फंडामेंटल राइट मिल रहा है, उनको भी करता है और इमीडिएट रिएक्शन लेता है उसके ऊपर। इमीडिएट रिजोल्यूशन जो है हमारी प्रॉब्लम का ये वहाँ पर करवा देते हैं। It had its inaugural sitting on, पहली सिटिंग जो हुई थी इसकी वो हुई थी 26 जनवरी 1950 को। द डेज इंडियन उसी दिन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था एंड सिंस देन इट हैज डिलीवर्ड मोर देन 24,000 रिपोर्टेड जजमेंट्स दे चुका है। अब जो सुप्रीम कोर्ट है हमारा, इट कंप्राइज ऑफ चीफ जस्टिस एंड 33 अदर जजेस, है ना। द प्रोसीजर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट्स आर कंडक्टेड इन इंग्लिश ओनली। वहाँ पर जैसे हमारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, हाई कोर्ट में हिंदी में, डिस्ट्रिक्ट हाई कोर्ट में तो जो ऑफिशियल लैंग्वेज अनाउंस कर रखी है उसमें भी होता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जितने भी जो कुछ भी सुनवाई होती है, रिटन आर्गूमेंट जो कुछ भी होता है सब इंग्लिश में होता है। The Supreme Court rules of 1966 are framed under Article 145 of the Constitution
to regulate the practice and procedure of Supreme Court. The same is amended and presently governed by the Supreme Court rules of 2013. Last amendment जो हमारा आया था हमारा सुप्रीम कोर्ट को लेकर वो आया था 2013 में, है ना. तो दिस इज हाउ वी सी बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोविजंस हैं हमारे यहाँ जुडिशरी के, बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोविजंस हैं. सो अब हमारे हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और लोअर कोर्ट क्या करते हैं, दैट वी विल बी सीइंग इन आवर नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू वेरी मच.